Gigi. Welcome to today's episode of The Reel Makers. Hey Rina, how are you doing? I am good. How are you? I'm so glad to be here as your finale because आज आपका आखिरी episode है and I am lucky to be the final one. Thank you so much. Thank you so much for joining in. मैं मेरे दर्शकों को बता दूं that why I'm calling him Gigi is because we fondly call him Greatest Ganesh and that is the reason I call him Gigi. तो आप बहुत बार ये पूरे सेशन में जीजी जीजी सुनेंगे तो वो एक्चुअली ये ग्रेटेस्ट गणेश है. That's the reason. So Gigi, thank you so much for joining in and let's start today's episode because Instagram अपने को सिर्फ 1 घंटा देता है so we have to be really fast. Let's start. Let's go. तो Gigi, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है. I want to ask you कि लोग इंडस्ट्री में आते हैं एक्टर्स बनने के लिए बट आप डांस डायरेक्टर कैसे बने? डिड डांस चूज यू या यू चोज डांसिंग? रीना, डांस तो मैं बहुत स्कूल से मैं डांस कर रहा हूँ एंड जब मैं कॉलेज में आया तब मेरे एक ग्रुप बना के हम कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स में प्राइजेस जीतते थे एंड देन वहीं एक कॉलेज में मुझे एक कोरियोग्राफर थे लॉलीपॉप, उन्होंने देखा और उन्होंने अपने ग्रुप में शामिल किया और फिर मैं एज अ बैकअप डांसर आई यूज्ड टू डू वर्ल्ड शोज एंड आई यूज्ड टू डू शोज एंड उसी दौरान आई यूज्ड टू बी थिंकिंग अबाउट म्यूजिक पीसेस वेरी डिफरेंटली. तभी मैं आई वाज MJ come MC Hammer come all these new things that were coming from the West. So I used to start choreographing. Being a dancer, I used to start choreographing the music pieces and all for the choreographer. And I slowly got a knack that I can make a little difference to the music scene. And ऐसे करते करते फिर 93 में I went on my own. I had this crew that from my college who were with me. And then we started doing shows and slowly एक one of these shows का रिहर्सल में ममता कुलकर्णी के रिहर्सल में विदु विनोद चोपड़ा एंड संजय लीला बंसाली had come to meet ममता for the film करीब. फिर फाइनली वो ममता ने नहीं किया but they had come to see her and talk to her and they saw my choreography and Sanjay Leela Bhansali remembered the choreography and he thought that it was unique, it was new, it was different. And then when he was doing Khamoshi, he called me and I was surprised because he says कि तुम फिल्म करोगे? मैंने बोला मुझे कुछ आता तो नहीं है because normally to be do a film song you need to be a film dance director का assistant होना बहुत जरूरी है. So I said मुझे मालूम नहीं पड़ी सर that you don't worry about because Sanjay Leela Bhansali was also a song director at that point of a time. So वो करा फिर वहाँ से moving on I started to direct my own dance sequences, film songs and then I made my album and that's how we went. वाओ सुपर्ब जर्नी. तो मुझे एक पूछना है कि what is the difference between a choreographer and a dance director? Because आप अभी बार-बार choreographer बोल रहे थे. So is there a difference between a choreographer and a dance director? See, what happens is when someone joins a film industry, a director और producer पे उसको इतना faith देना कि भाई ये सब खुद से संभाल लेगा थोड़ा difficult होता है because risk factor है, नया लड़का है, करेगा नहीं करेगा कैसा करेगा. So वो उनको उतनी लिबर्टी देते हैं कि भाई आप एक कोरियोग्राफ कर लीजिए, आप स्टेप बता दीजिए, बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए, कैमरामैन और डायरेक्टर मिलके डिसाइड कर लेंगे कि इसका क्या करना है, कैसे करना है. So when someone delivers a certain kind of song and someone has a vision to see everything right from the sets to the costumes to the styling to the cut edit, what kind of a look you want to give, what kind of a feel you want to give, जब आप उस लेवल के ग्रेजुएट हो जाते हो, when you start directing those songs on your own without the help of anyone, I think that is when you become a dance director where you decide कि boss इसका particular look ऐसा होगा, ये set होगी इसके पीछे, ये color combinations होगा, इसका edit pattern ऐसा होगा. So that is how you graduate. So what I also do is I also use a third camera for myself. I also shoot few things which I want in a particular music, which वैसे मैं बता नहीं पाऊंगा. तो मैं वो अपने आप शूट कर लेता हूँ जो मेरे को इंसर्ट्स डालने हैं या मेरे को पर्टिकुलर शॉट एक पर्टिकुलर वे में चाहिए. तो बेसिकली व्हेन यू हैव अ 2 कैमरा सेटअप, आई एम द सेकंड वन, द मेन गाय इज द डीओपी, देन आई टेक द सेकंड. इफ यू हैव 3 वी हैव 2 एंड देन आई टेक 1. सो उससे यू आल्सो हैव अ कंट्रोल ओवर व्हाट स्मॉल थिंग्स यू वांट टू टेक इन अ पर्टिकुलर. आपके माइंड में एडिट चलता रहता है, सो यू नो एग्जैक्टली ये सब चीजें मैं बीच में लेते रहूंगा जो चाहिए. सो दैट इज the difference between choreographer and a dance director. Dance director becomes like a 5-minute director of that particular song. Oh wow, मतलब डांस डायरेक्टर को हर एक एस्पेक्ट ऑफ डायरेक्शन
पता होना चाहिए, कैमरा एंगल्स पता होने चाहिए। एंड सिंस यू सेड यू आल्सो स्टाइल योर जो भी आपके मतलब एक्टर्स है, आप उनको स्टाइलिंग भी करते हो, तो कॉस्ट्यूम का सेंस भी होना चाहिए। तो आप पूरा एक डायरेक्टर ही हो। यस, ऑल्सो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि वो स्टोरी में वही कैरेक्टर है। जैसे व्हेन आई वाज शूटिंग मैं हूं डॉन, आई हैड टू कीप इन माइंड दिस शाहरुख्स कैरेक्टर एज डॉन, सो ही राइट। कुडंट सडनली ब्रेक आउट इनटू डांसिंग, बिकॉज उस फिल्म में जो उसकी स्टाइलिंग है, जो उसका ऑरा है, जो उसका उसका प्रेजेंटेशन है, उसको ध्यान में रखना थ्रू आउट द सॉन्ग इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग अ सॉन्ग लाइक दैट, सो दैट इज अ की थिंग। ओह वाओ। सो डिड यू असिस्ट एनीबडी, या मतलब क्या कैसे किया आपने? आपने किसी को असिस्ट किया था, डायरेक्टर या किसी डांस डायरेक्टर को? नहीं, मेरा जो जो पहला फिल्म था वो था खामोशी, जिसमें मैंने गाना किया था आज मैं ऊपर आसमां नीचे। तो उसमें मुझे कुछ मालूम नहीं था, तो मैं डायरेक्टर को और कैमरामैन को पेस्टर करते रहता था कि वीडियो वाज गेटिंग पॉज्ड। यस यस जीजी फाइनली। चलेगा, मतलब इतना भी नहीं आ रहा है कमेंट्स ऊपर तक। हाँ चलो, आई कैन एटलीस्ट सी योर फेस। आई होप इस बार वो नेटवर्क रुके नहीं है। आई होप वी कैन जस्ट डू नाउ प्रॉपर्ली। चलिए, सो यू वर टॉकिंग अबाउट व्हाट वाज द टेक्निकल डिफिकल्टीज एंड थिंग्स लाइक दैट। या सो तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये पर्टिकुलर लेंस क्यों लगा रहे हैं, और ये पर्टिकुलर शॉट इस शॉट के बाद क्यों आ रहा है, और इसको कैसे कैप्चर कर रहे हैं। तो आई यूज्ड टू पेस्टर द कैमरामैन एंड आई यूज्ड टू पेस्टर संजय, और आई वाज लर्निंग। सो कभी कभी ऐसा भी होता था कि संजय लीला भंसाली यूज्ड टू गेट एंग्री विद मी, यूज्ड टू नॉट टॉक टू मी आल्सो फॉर अ डे, ऐसे गुस्से में, थोड़े हैं वो गुस्से टाइप्स। तो यस, आई लर्नड, एंड देन स्लोली स्लोली आई डिसाइडेड कि यार फिर क्या होने लगा कि ऐसे सॉन्ग्स को देखने के बाद रियलाइज होने लगा कि अच्छा ये शॉट इसके बाद आने से ऐसा दिखता है। सो आई थिंक माय फर्स्ट फिल्म वाज माय स्टडीज आल्सो एंड ग्रेजुएशन आल्सो। बट देन डिड यू असिस्ट एनीबडी टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, या आपने सिर्फ देख देख के ही सीखा? No, good, I did not. I did not, because the way I started doing my songs were totally different than the normal जो norms चल रहे थे। अगर मैं norms किसी का follow करता, तो I would have had that particular thought process of doing songs. ओके ओके। बट बीच में ऐसा भी एक फेज आया था व्हेन यू स्टॉप्ड, और रादर यू डिडंट वांट टू डू कोरियोग्राफी फॉर फिल्म्स। व्हाई इज दैट सो? वो क्या होता था कि गानों में द डायरेक्टर्स यूज्ड टू टेल मी टू डू थिंग्स व्हिच आई डिडंट वांट टू डू। मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्यों करने बोल रहा है, लाइक वो हीरोइन को बोलो ऐसा करे, वो ऐसा करे, वैसा करे। And I used to be uncomfortable with telling the heroines to do things which I thought was not classy and was not good, and जबरदस्ती वो करवा रहे थे, तो मुझे फोर्स लग रहा था। Then the songs used to not turn out good and the blame used to come to the choreographer कि भाई कौन था कोरियोग्राफर, उसको आता नहीं है क्या? So then I decided कि मुझे गाना करना ही नहीं। अगर मुझे मेरे हिसाब से गाना करने अगर नहीं मिला तो मुझे गाना करना ही नहीं, मुझे जब भाड़ में जान दो, because I was doing stage shows and I was doing really well with my stage shows. So I said कि यार नहीं करना है, छोड़ो। And then whenever I got a chance to do, the first time I was doing मस्त माहौल में जीने थे, जो मुझे नहीं करना था, महबूब मेरे जो गाना है, मुझे वो गाना नहीं करना था, और कैसे भी करके मतलब सुष्मिता सेट कि अगर गणेश नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगी, एंड वो सब हुआ ड्रामा। एंड देन फाइनली आई डिड द सॉन्ग द वे आई वांटेड टू डू इट, एंड देन पीपल रियलाइज कि हाँ भाई इसको छोड़ दो, ये जब भी अपने कंधे पे लेता है सामान तो ये बहुत अच्छा करता है। एंड देन from that time on, Kam Bhaktesh, Khalas, Babuji, all these songs I directed on my own. वाह, तो मैं वहीं पे अभी आ रही थी। आई वाज जस्ट गेटिंग इनटू दैट क्वेश्चन आल्सो, दैट लेटर यू केम ऑन विद अ बैंग। आप मतलब एक नई स्टाइल, एक नया ट्रेंड लेके आप आ गए इंडस्ट्री में, जिसमें यू स्टार्टेड द ट्रेंड जिसमें एक आइटम गर्ल या एक आइटम सॉन्ग के लिए एक लड़की जो उस फिल्म का पार्ट ना हो उसको बाहर से कास्ट किया जाता था। जैसे पहले क्या होता था कि आइटम गर्ल जो थी या आइटम सॉन्ग में जो परफॉर्म करती थी, शी यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म, जैसे हेलन जी है, somebody like that. बट जब आपने ये ट्रेंड चालू किया कि कंप्लीटली नई लड़की को उस चीज के लिए कास्ट करो जो उस फिल्म का हिस्सा ही ना हो, एंड यू केम विथ बाबूजी जरा धीरे चलो, महबूब मेरे एज यू राइटली सेड, और आपके मतलब ईशा कोप्पिकर वाला खल्लास, ये सारे गाने। सो जस्ट टेल अस अबाउट इट कि आपने ये कैसे सोचा, कहाँ से आइडिया आया? What happens is, जब आप किसी बहुत बहुत बड़े हीरोइन को देखते हो ना, उसके साथ उनका एक उनका बॉडी ऑफ वर्क भी आप देखते हो, तो सडनली आप उनसे कुछ भी नहीं करा सकते। वो लोग भी मना करेंगे कि नहीं यार, मैं जैसे अभी याना गुप्ता भैंस पे बैठी है, तो कोई बहुत ही सक्सेसफुल हीरोइन बोलेगी भाई मुझे भैंस पे क्यों बिठा रहे, मैं भैंस पे नहीं बैठूंगी। तो मैंने सोचा कि whenever you have to do something where you want people to fall in love with the person, you have to cast a newcomer, because what happens is
उसमें वो बॉडी ऑफ वर्क नहीं रहता जिसके कारण यू नो द एक्ट्रेस वुड नॉट बी कंफर्टेबल डूइंग सर्टेन थिंग्स एंड व्हेन यू डू विद अ न्यू कमर देयर इज this certain liberty you can take while shooting and you know also people fall in love with a new fresh face quite quickly because उनको बहुत अच्छा लगता है कोई एक नया. तो जब भी मैंने खलास किया या जब भी मैंने बाबूजी किया I had that in mind. और बाबूजी का स्टोरी ये था कि the singer had a typical voice. सोनू कक्कड़ had a typical voice. तो मैंने बोला ये किसी भी हीरोइन के फेस पे, सक्सेसफुल हीरोइन के फेस पे इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना एक रैंडम एक न्यू गर्ल को डालेंगे. तो and I had seen Yana Gupta in the L'Oreal ads and she was a big supermodel and I said कि इनको कराते हैं. हाईलाइट ये कि याना गुप्ता को भी नहीं करना था. She's like you know I don't want to do film songs, I want to do music videos. मैंने बोला क्यों? तो उस टाइम पे ट्रेंड था. उस टाइम पे जो रहते मॉडल्स लोग का ट्रेंड था कि एक सिंगर साइड पे बैठ के गाना गाता है और एक मॉडल पूरे वीडियो में दिखती है. तो बोले वो ट्रेंड है. मैंने बोला मेरे थोड़े गाने देख लो, इफ यू लाइक इट देन डू इट. एंड शी सॉ माय सॉन्ग एंड सेड दिस इज वेरी डिफरेंट. मतलब ये तो बहुत अलग है बाकी गानों से. मैंने बोला चलो नेक्स्ट थिंग यू नो दैट शी इज सिंगिंग ऑन अ बफेलो. I want to know about that buffalo because you know that was like something very different कि एक लड़की बफेलो पे बैठ के आ रही है and that song you know when you think about बाबूजी you think about that entry. So just tell us about that. ये कहाँ से आइडिया आया? My logic was कि जो यम होता है गॉड ऑफ डेथ यमा वो भैंस पे आता है ऊपर से आसमान से. तो मैंने बोला ये वो यम टाइप एक गॉडेस है. यम की फीमेल वर्जन गॉडेस है जो आसमान से आती है भैंस पे बैठ के. तो दैट काइंड ऑफ शी इज गोना किल ऑल द मेन, ऑल द यंग मेन, शी इज गोना किल देम विद हर लुक्स. सो वो थॉट प्रोसेस था भैंस पे. बट शी वाज रियली स्पोर्टिंग. शी सैट ऑन दैट. और क्या होता वो बहुत नॉइज से वो डर रही थी. शी वाज अ फीमेल एंड वो डर रही थी बफेलो के भाई ये इतने सारे लोग मेरे सामने क्या है. तो we were actually playing the music on really low volume and everyone was hamming away and she was sitting on the thing and she sang like full throttle music चल रहा है because वो बफेलो के ऊपर बैठ के करने को हो नहीं रहा था. वो बहुत डर रहा था बफेलो. But it was really funny. सब slowly dance, slowly music पे जोर से सब लोग acting करे. It was really funny that day. Wow, she ruled it. Ramesh Taurani sir is here. He is like How are just you, saying sir? Salute. hello sir. Hello Ramesh sir. Father of Bollywood. Yes, such a nice and humble man. I really, you know, admire and respect him. So, Gigi, just tell me, how has dance and choreography evolved over a period of time? Like choreography and dance then, and now I feel it's more of acrobats. What is your take on that? What do you We have all been influenced in some way or the other by the West. तो West में है ना पहले म्यूजिकल्स होते थे. तो हमने भी जब हमारे फिल्में शुरू की और हमारे भी म्यूजिकल्स आए तो हमने भी म्यूजिकल से शुरू किया. वेस्ट का थोड़ा बहुत फीलिंग, थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लेके हमारे सॉन्ग्स में भी म्यूजिकल वाला एलिमेंट था. जैसे हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना. सो ही इज टेलिंग अ स्टोरी अबाउट द गर्ल ही सॉ. तो वो वैसा चलता था. जैसे डाकिया डाक लाया क्योंकि वो पोस्टमैन है. अभी आज की तारीख में कोई डाकिया पोस्टमैन पे गाना बनाने वाला नहीं है. तो उस टाइम पे क्या होता था, दे यूज्ड टू बी ट्रू टू द फिल्म्स स्टोरी. द सॉन्ग्स यूज्ड टू बी रेलेवेंट. तूने मेरा दूध पिया है, तू बिल्कुल मेरे जैसा है. वो बच्चे को बोल रहे हैं. तो एवरीथिंग वाज रेलेवेंट. अभी क्या हो गया है कि अभी वेस्ट के जैसे होने लग गए. द फिल्म्स डोंट एक्चुअली नीड अ सॉन्ग राइट नाउ बिकॉज वैसा कोई सिचुएशन में किसी को जाना ही नहीं है. एंड नाउ द सॉन्ग्स आर जस्ट फॉर प्रमोशनल सेक. सो वो फटाफट हॉट एक गाना ले लो, अच्छा गाना पैकेज कर लो, उसको उसका फेस बना दो, ड्राइवर बना दो कि ताकि एक बस क्रिएट हो. सो कोरियोग्राफी देन was very true to the character. वो कैरेक्टर कैसा था उसके हिसाब से होता था. जैसे मैंने अगर कोई गाना किया है तो मैंने उस कैरेक्टर के हिसाब से किया. अगर वो भुवन है फ्रॉम लगान तो वो ओ मितवा मैंने ऐसे स्टेप्स दिए जो 1847 में भी रेलेवेंट लगे. यू नो तो आई स्टक टू द कैरेक्टर एंड वी डिड दैट. अभी ट्रेंड क्या है कि सब लोग वेस्ट के सब चीजें देख रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू मतलब इमिटेट दोज थिंग्स. वो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना जरूरी नहीं है टू डू 40 steps in 10 seconds. वो जरूरी नहीं है. बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर सो engrossed by what's happening in the West that they are forgetting कि इंडियन सॉन्ग्स में वो सब चीजों की जरूरत नहीं है. आपको इंडियन जो ग्रेस है, जो इंडियन वैल्यूज है, वो डालना बहुत जरूरी है. 50 स्टेप करोगे वैसे भी जनता को समझ में नहीं आने वाला कि यार 4 बीट में आपने 28 स्टेप किए. 28 स्टेप करने की जरूरत नहीं है. वी नीड टू कीप द सोल अलाइव. दैट इज व्हाट आई मीन. A few actors will look like dancers and a few actors will look like actors. That's why actors who are not dancers, they look better because वो अपनी acting capabilities use करते हैं, वो अपना करिश्मा use करते हैं. They don't try to show off
40,000 steps, because वो steps करने के लिए पीछे dancers है ना. And Correct. even the guys who are great dancers, they also should not try to compete with the backup dancers कि मैं उनसे better हूँ. वो नहीं करना. हमको ये करना चाहिए कि we should do things which makes us look like a star, not like a dancer. और वो हो रहा है कि every damn song the hero is trying to do 1,000 steps in the full song. वो नहीं होना चाहिए. We should keep the hero alive. We should keep the aura of an actor alive. And we should do choreography around the actor, not make him look like a dancer. तो आजकल वो ट्रेंड चल रहा है कि भाई कोई बैक फ्लिप मार रहा है तो उसको 50 बैक फ्लिप मरवा लो. क्यों, जरूरत क्या है? Because finally he is also an actor who needs to look good, you know, who needs to look like a star, you know. That. Very, very well said, Gigi. Absolutely well said. Vrinda, we are waiting. Vrinda मुझे बोल रही है कि जीजी का imitation वाला वो करवा लो, mimicry करवा लो. So Vrinda, just stay tuned. We are going to come to there. My rapid fire is about that. So stay tuned. हम लोग जीजी से mimicry भी करवाएंगे. So just stay tuned. After one or two more questions, we'll get on to a rapid fire. तो जीजी, जैसे आपने बोला कि अभी acrobats है, backflip, ये वो ये सब कुछ चलता है. Now I am also a dancer. मैं भी फोक डांस बैकग्राउंड से आई हुई हूँ. तो हमेशा हमारे इसमें बोला जाता था या अभी भी बोला जाता है कि क्लासिकल डांस बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डांसर. बट अभी का जो डांस आप देखते हो जिसमें ज्यादा एक्रोबैट्स होते हैं, यू नीड टू बी मोर फ्लेक्सिबल. सो डू यू स्टिल थिंक दैट क्लासिकल बैकग्राउंड इज इंपॉर्टेंट फॉर अ डांसर? फॉर हीरोइंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या होता है कि आज का जो हिप हॉप और जो टाइप का डांस चल रहा है वो थोड़ा छिछोरा है. Yes. अगर आप देखो yesteryears की हीरोइन, whether it is हेमा जी, or whether it is रेखा जी, whether it is श्री जी, or whether it is माधुरी, whether it is जूही चावला, शिल्पा शेट्टी, ऐश्वर्या राय, they have all taken classical lessons. They have all graduated from their classical things. और उससे एक औरत अप्सरा लगती है, एक औरत woman के type, मतलब she comes across as someone who's like a goddess. When you start doing all this hip hop baji, na, you start looking like a chokri. You don't want to be a chokri in the film industry. You need to be a diva. You need to be larger than life. And classical, Kathak and Bharatnatyam, all these songs, all these forms of dances, they give you that maturity of expression. आपके बॉडी में वो लचक आती है, वो ग्रेस आता है, आप में एक पॉइज आता है जो आपको हिप हॉप में सीधा जंप करने से नहीं मिलेगा. That's why I tell all the parents कि भाई जो बेसिक फॉर्म्स ऑफ डांसिंग है, जो इंडियन फॉर्म्स ऑफ डांसिंग है, इवन फॉर बॉयज, you know, there is a big difference अगर आप सिर्फ हिप हॉप करते हो और अगर आप फोक डांसेस भी करते हो, भंगड़ा करते हो, और ऑल दिस फोक डांस जो हम डांसर थे, तो वी हैड टू डू बैकअप डांसिंग फॉर श्रीदेवी जी ऑल्सो. मोरनी बागामा भी करना पड़ता था और हमको वेस्टर्न डांस भी करना पड़ता था. तो वी हैड टू डू ऑल फॉर्म्स ऑफ डांसेस. सो वो आपको हेल्प करता है टू ग्रो. बिकॉज नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे लोग बहुत फनी लगते हैं व्हेन दे डू इंडियन डांसिंग. उनको डिपिंग नहीं होता, उनसे डिपिंग नहीं होता. वो देसीपना, इंडियन फिल्म्स में देसीपना आना बहुत जरूरी है. एंड आप भले हिप हॉप करो, आप भले ब्रेक डांसिंग करो, बट यू हैव टू डू द इंडियन फॉर्म्स ऑफ डांस. वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. आई थिंक अभी बिकॉज अपने यहाँ पे भी जो गाने भी होते हैं जिसमें ढोल ताशा है, अजय अतुल काइंड ऑफ म्यूजिक, यू नीड दैट टच. आप हर एक इसमें हिप हॉप और बी बॉइंग नहीं कर सकते हो. तो आई थिंक दैट ग्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी 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 राइटली सेड. तो आई वांट टू आस्क यू, सिंस वी आर सेइंग कि बहुत इवॉल्व हुआ है, डांस स्टाइलिंग डिफरेंट हुए हैं, इवॉल्व हुआ है सब कुछ. सो हाउ डिड यू इवॉल्व? जीजी वापस से नेटवर्क का चक्र घूम रहा है. यस शिल्पा, आई वांट टू आस्क हिम टू सिंग आल्सो. जस्ट स्टे ट्यून्ड, वी आर गेटिंग देयर. So Gigi, I want to ask you, did you also Amruta? Hi Amruta, thank you so much. So Gigi, just tell me, how did you evolve yourself also? जैसे डांस तो इवॉल्व हो गया, बट एज अ कोरियोग्राफर, एज अ डांस डायरेक्टर, आपको भी तो अपडेटेड रहना पड़ता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड है उसके साथ. सो डू यू ऑल्सो टेक सम ट्रेनिंग्स, एंड हाउ डू यू इवॉल्व योरसेल्फ? See, the biggest plus that I can say what happened to me is I started to perform as a singer performer. So क्या होता था, I had to be updated with the latest forms of dances, and I had to innovate my own choreography to stay up to date with what's happening, So whether I'm doing Mehdiwana or abhi jo main happy dance karne wala hu, I have to keep in check because I'm going to be a performer in the music video. Now, having said that, it is very important to collaborate with people who are 20 years, 15 years younger than you, because they have some other concept of choreography. And they have some other concept because the dance is changing. But at the same time, it is important to collaborate, but keep the Indian sensibility in mind. So what I normally do is whenever I collaborate, like for Let's Party, I collaborated with Choreotics. When I do my shows, I call the royal family.
from US, or I call the Fabulous Sisters from Japan. So when they come in, I make sure that my choreography and their choreography are mixed in such a way that even the Indian audience gets something which is Indian. Otherwise, वो पूरा फिरंग हो जाएगा तो एकदम off हो जाएगा. So, you know, I also make my own music for the shows. So what happens is when you are so engrossed with what you want to do and how you want to project, you start learning yourself. And maximum things that I've learned is I've learned on my own. I've learned on my own, and I will tell everyone to keep learning and don't stop the learning process, because that is what makes new things happen, you know. Very rightly said. You have to be updated with the trends and you have to keep learning. Yes, That is उसी का फायदा होता है आपको. Very rightly said. तो चलिए आप एक बहुत बड़े क्वेश्चन की तरफ आते हैं. You know, I am so fond. आपने तीनों खान्स के साथ काम किया. आपने सुपरस्टार, आइकॉनिक 3 खान्स ऑफ द इंडस्ट्री, आपने तीनों के साथ काम किया हुआ है और तीनों को अलग अलग चीजें करवाई हुई है. मतलब अगर आप छम्मक छल्लो में देखो तो आपने शाहरुख खान को भरतनाट्यम करवा दिया है, आपने सलमान खान को ओ जाने जाना में शर्ट निकलवा दिया है और आमिर खान को आपने फोक डांस करवा दिया है. तो कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ऑल दीज 3 खान्स हैव देयर ओन स्टाइल, हैव देयर ओन ड्रेसिंग सेंस, आपने ये सबको कैसे किया? मतलब आपने उनका स्टाइलिंग कैसे किया? हाउ डिड यू डिसाइड विच स्टेप्स टू गिव देम? व्हाट वाज गोइंग ऑन योर माइंड? कैन यू टेल अस अबाउट इट? ये each actor is a character. वो कैरेक्टर पे पहले आपको कंसंट्रेट करना चाहिए कि भाई इनका जो प्रोसेस है माइंड कैसे चलता है. जैसे फॉर सलमान इट इज वेरी सिंपल, ही इज स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, मतलब वो सीधा सीधा है. एंड यू हैव टू, ही इज इन लव विद डांसिंग, he wants to dance, but you have to be very specific as to what you give him. You cannot give him Hrithik Roshan steps because that will not make him look good. You have to program his steps, you know, program for him. And you will not believe this, ओ जाने जाना का जो हुक स्टेप है, me and Prabhudeva were doing it at the South Indian Filmfare Awards, and there was a face-off kind of a thing. Me and Prabhu, we were doing and exchanging steps, and then someone played O Jane Jana, and Prabhu Deva tried to do that step, but trust me, he could not be as graceful as Salman Khan, because जो step जिस एक्टर पे लग जाता है ना, वो स्टेप उसी एक्टर पे अच्छा लगता है. And with Salman, you have to be broad, you have to be straight out of the heart, and you have to make sure that you don't confuse him with too many combinations of hands and legs. वो आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है. बहुत ज्यादा उनको confuse मत करो. He will look stunning and straight from that. With Shahrukh, it is. Wait. मैं इसमें आपको इंटरप्ट करूंगी. सलमान खान की बात चल रही थी तो आपने, because you do styling also of your videos, so I'm very curious to know that Salman Khan first time shirtless आए थे in ओ जाने जाना. So क्या सोच के आपने उनको shirtless लाया? देखिए वो सोहेल खान का आइडिया था, बिकॉज सोहेल आस्क्ड मी कि अपन शर्टलेस करें तो कैसा लगेगा. एंड देन आई रियलाइज कि यार अभी तक तो ऐसा कोई गाना आया नहीं है जिसमें किसी ने भी शर्ट उतारा हो और पूरा गाना शर्टलेस किया हो. एंड सलमान एट दैट टाइम आई थिंक सो वाज एट द पीक ऑफ हिज फिजिक, एंड आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग कि बाइक में आएगा, ये बाइक में जाएगा, नंगा ही आएगा. एंड देन आई रियलाइज कि व्हाट द हेक, ही इज सलमान खान एंड ही इज, ऐसा बॉडी अभी तक किसी का है नहीं. एंड आई थिंक सो इट विल रियली फ्लो वेल. And that's how it happened, and he rocked, and he was confident because he had the body with that. So yeah. with Shahrukh, he's very fast, he's very brainy, you know, you can say. So you need to put a lot of things which are very very technical and very very advanced, because he's like that, he's very technical. So if you see Main Hoon Dawn, where he's doing all these gimmicks with his hand, he's doing the bottle and he's putting the fire, or whether it is doing Chammak Challo and suddenly he turns out to do a Bharatnatyam thing, and suddenly he's also done tutting in Chammak Challo. So you have to keep his mind occupied, because he's a star who likes to be occupied. You know, you give him a Rubik's Cube and he will solve it in 10 seconds. He's like that kind of a guy. So you have to make sure that he's engrossed and you give him those highlights which he craves for. And you see all his songs, he will always be using his brains somewhere to do something which is very smart, you know. Right. With Amir, you have to be true to the character. So हम जब लगान कर रहे थे, मितवा कर रहे थे, तो मैंने बोला आप है ना, आप लोग रूफ पे चले जाइए, रूफ पे बैठिए, वो मौन रहेगा और टोंग 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 वो म्यूजिक बजेगा, तो आप लोग घोड़ा चले. बोले मैं घोड़ा क्यों चलाऊं, ये लगान वैसी पिक्चर नहीं है भाई, ये बहुत सीरियस पिक्चर. तो मैं उनको समझाया कि देखिए अभी आप 3 गुना लगान लेकर आए हो सर पे, पूरे गांव वाले आप पे भड़के हुए हैं. अगर आप अभी गाना शुरू करोगे तो पत्थर फेंक के मारेंगे उनको. तो पहला चीज आप क्या करो, आप लोगों को इंट्रीग करो, उनका गुस्से को शांत करो विद अ लेवल ऑफ इंट्रीग. मतलब लेट देम थिंक कि यार अब ये क्या कर रहे हैं. उनका पहले गुस्सा शांत करो, लेट देम फोकस ऑन समथिंग व्हिच इज ऑकवर्ड, कि यार ऊपर बैठ के बच्चे के साथ क्या बोलने की कोशिश कर रहा है.
उनका जैसे गुस्सा ठंडा होगा आप तब आओगे नीचे, then they'll start believing in what you're saying. So that discussion took half an hour to 45 minutes. अच्छा, आमिर खान का स्टाइल, अच्छा. And then he believed what I was trying to say. And then he went on top, he did the thing. And trust me, the step was such a big rage that we had gone to South Africa for the IFA Awards. And वहां पर लगान का प्रीमियर हुआ था साउथ अफ्रीका में, डर्बन में. और मैं डिनर कर रहा था और राकेश रोशन जी वो देख कर आए, एंड ही पुल्ड मी आउट फ्रॉम माय चेयर. मैं खा रहा था, बोले उठा, बोले नहीं वो यार वो मितवा का स्टेप करके दिखा मेरे को, कैसे कर रहा है वो, कैसे किया तूने. So that's how you need to work with these guys, you know. Of course, I can understand because मैं आमिर खान जी के साथ, you know, I was also fortunate to work with him in Talash, and I know he's such a perfectionist. So I can totally, you know, imagine and relate कि आपको कितना टाइम लगा होगा to convince him कि ये ऐसा करना है. I can totally understand. तो इसी में से मुझे एक बात बताइए, आपको ओ मितवा के लिए अमेरिकन कोरियोग्राफी अवार्ड मिला है, एंड उस पैनल पे जेनिफर लोपेज टाइप, यू नो, जितने दिग्गज लोग हैं जो उस पैनल पे है, तो कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट दैट अवार्ड व्हिच यू गॉट फॉर ओ मितवा? सो अमेरिकन कोरियोग्राफी अवार्ड ऐसा हुआ कि लगान वहां पर रिलीज हुई थी. सो फॉर्चुनेटली लगान ऑल्सो केम इनटू द कोरियोग्राफी, यू नो, दैट थिंग. सो वो सिंस इट वाज रिलीज देयर, वो सॉन्ग्स आए और वो पैनल में पैट्रिक स्वेजी उस टाइम पे, जेनिफर लोपेज एंड all were there, and they gave the award to लगान. And it was very unique because यहाँ पर मितवा को उन्होंने नॉमिनेट भी नहीं किया और वहां पर मितवा के लिए आपने अवार्ड दे दिया. And it was very fortunate because I think they look out for things which are unique. हमारे यहाँ पर तो इंडियन गाने होते हैं, but I think so for them it was a unique thing, a unique way of choreography, and that's how it was. Right. Congratulations, Gigi. Congratulations for the award. And many more to come, Gigi. चलिए अब इसके ऊपर चल एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद we'll go to rapid fire because people are waiting for the rapid fire. One more question. आप जीजी, आप बहुत सारे स्टेज शोज करते हो, लाइव इवेंट्स करते हो. So what is the difference between a film choreography and a live event or a stage choreography? देखो, जब आप लाइव करते हो ना तो पब्लिक को आप क्लोजअप शॉट नहीं दे सकते हो, तो एंड आपका जो विजन है वो पूरा वाइड में आपको पूरा गाना दिखता है फॉर द एंटायर 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, 15 minutes duration. It is just one. So you have to make sure the changes are so dynamic that you're not bored with what is happening on stage. Okay. So now what happens is you have to create things which are unbelievable in life, and that takes a lot of effort. And I really like challenges. मुझे ऐसा लगता है कि जितना चैलेंज ज्यादा हो उतना ज्यादा आप मेहनत करो और उतना ज्यादा उसका आउटकम हो. So for me, stage, I preferred stage to doing film songs because film songs में क्या एनर्जी बहुत ड्रॉप हो जाती है वाइल शूटिंग, कभी कभी लो हो जाते हैं, कभी कभी बैठ जाते हैं. हालांकि आप पॉपुलर फिल्म सॉन्ग से ही होते हो, बट स्टेज शोज में जो वन टेक ओके वाली बात है, यू कैन नॉट goof up, you cannot make mistakes, everything has to be perfect. And there are so many things, you know, like if you have 100 dancers keep placings, positioning, and most important is changeovers. जो changeovers आप करते हो, सब लोग को अपने अपने मार्क पे आना है. The lighting has to be precise, the properties have to come on time, everything, the changeovers, everything has to happen in time, and that excitement is what keeps me going. So I prefer stage more because of the thrill, because of the excitement, and वहाँ पर बहुत challenges होते हैं, and I like the challenges. I think so that's why live is much preferable. But again, film songs में you can create something which no one has thought about with the visuals and with all that. So both have their plus and minuses, and hopefully I keep doing both of them. वाओ, सुपर्ब. तो मुझे एक बात बताइए, अगर कोई ऐसा किस्सा, बिकॉज मैंने भी बहुत सारे लाइव शोज किए हुए हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स अपने साथ होते रहते हैं, लास्ट मिनट कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या, कैन यू जस्ट शेयर वन क्विक एक्सपीरियंस या ऐसा कुछ एक मेमोरी दैट यू हैव? हम since you are a Salman Khan fan, I'll tell you a funny incident about Salman Khan. We went to Australia, और ऑस्ट्रेलिया में वो हमने उनको एक हेडगियर दिया था. उस टाइम पे माइकल जैक्सन आए थे और वो पूरा वो मेटल आउटफिट में आए थे, तो वी वर ऑल एक्साइटेड कि यार ने हमको कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए. तो वी हैड क्रिएटेड अ फुल हेडगियर फॉर सलमान व्हिच वाज लाइक अ फ्यूचरिस्टिक मेटालिक एंड विथ हिज चेस्ट, मेटल चेस्ट एंड मेटल एब्स एंड ऑल, वो सब पहन के. सो वो बहुत ही फनी सा ऑडिटोरियम था. उसमें कुछ ऐसे 1 माला 2 माला उसके अंदर बने हुए थे. तो बोले कैसे करेंगे? मैंने बोला तो फिर आप वो गैलरी में आइए और गैलरी में खड़े रहिए, और गैलरी से फिर वो एक सेट नीचे जंप मारिए, और फिर वहां से
फिर हम लोग टेक ओवर करेंगे, एक म्यूजिक पीस आएगा एंड देन वी विल टेक ओवर एंड देन बाय दैट टाइम यू कैन एंटर फ्रॉम द नीचे वाला मेन स्टेज. सो हैपेंड he jumped on top of the parapet. अभी वहां पर जाने के बाद ना उनका बैलेंस गया, तो उन्होंने जो काला कलर का जो कपड़ा होता है जो मास्किंग बोलते हैं जिसको, उनको पकड़ लिया और वो ऐसे लटक रहे थे और वो ऐसे मतलब वो ऐसे झूल रहे हैं और वो मुझे एक्चुअली उनका जो आंख है ना उसके अंदर से मेरे को देख रहे हैं, मैं नीचे और हमने उनको ऐसा पॉइंट किया हुआ है ऊपर, तो वो मुझे देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई मैं तो अटक गया. तो मैं भी उनको ऐसा ऐसा हमारे हाथ में गन है और हम उनको देख रहे हैं और वो मुझे ऐसा नीचे देख रहा है कि भाई क्या करूं. तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, जब मारो मारो जंप, और वो एक्चुअली मुझे रियलाइज नहीं हुआ लेकिन वो जंप बहुत बड़ा था. तो ही रियलाइज के जंप बहुत डीप है, मतलब जो नीचे लेवल है वो इजी नहीं है, तो वो मना कर रहे हैं मुझे ऊपर से. नो 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 एंड आई एम सेइंग करो करो, म्यूजिक जा रहा है, मैं गन से बोल रहा करो. एंड देन ही जंप डाउन और फिर वो थोड़े पिछले और फिर वो नीज पर आ गए ऐसे एकदम कूल डूड के माफक. And then that show happened and it was so funny that we realized कि यार ये कुछ भी हो सकता है. Similarly ऐसे ही एक शो में हम लोग का एक पॉइंट था where he removes his t-shirt and वो bare body में थोड़ा डांस करने का, he goes through the audience he goes, क्योंकि हमारे पास तो वो माइकल जैक्सन वाला क्रेन नहीं है कि हम सर के ऊपर से जा सके, तो हम भाग के जाते थे. तो हमने बहुत शोज में किया और सुपर उसका इफेक्ट होता है. पीपल आर लाइक रियली अमेज्ड कि यार आर्टिस्ट नीचे आ गया. तो उन्होंने शर्ट टी शर्ट फाड़ा और वो नीचे गए. जैसे नीचे गए आई थिंक वो लोगों ने पहले वाले शोज का फीडबैक लिया था कि ऑडियंस में जाता है, तो उनको मालूम था कि ऑडियंस में आने वाला है, तो सब खड़े हो गए. तो हमारे सामने एक वॉल आ गया और सब हमारी तरफ भाग के आ रहे. तो उस तरह सब आ रहे इस तरफ चल, तो हम लेफ्ट मारे और हम लोग किधर भागे, एक दरवाजा खोला हमने और हम बाहर आ गए. हमको रियलाइज हुआ कि वो गेट जो है वो एग्जिट है. हम स्टेडियम के बाहर आ गए और वो पीछे से दरवाजा बंद हो गया, तो हम उनको खोल भी नहीं सके. और हमारे बाहर हाईवे है, गाड़ियां जा रही है और सलमान बेयर चेस्टेड और ऑस्ट्रेलिया की ठंडी में हम लोग खड़े हुए हैं और हम लोग हंस रहे हैं. अरे हम बाहर आ गए स्टेडियम के. सलमान बेयर बड़ी बोले गढ़िया ये किधर लेके आया. मैंने बोला मेरे को क्या मालूम, मेरे को लगा बैक स्टेज का दरवाजा है. मैं खोला, हम लोग बाहर आ गए, पीछे से गेट बंद. फिर थोड़ी देर बाद अंदर लोग ने ढूंढा, बाउंसर लोग ने कि भाई किधर गया हीरो. फिर खोला दरवाजा, फिर हम भाग के अंदर से गए, स्टेज पर आए. It was really funny. काश उस दरवाजे के बाहर दरबान की ड्यूटी मुझको मिलती. I would have like stood there. मैं एक शॉल लेके खड़ी होती, उसको ऐसे I would have just hugged him with a shawl to just उसको थोड़ा सा warmth देने के लिए. Oh my God, I can मतलब ये अगर मुझे पता होता कि सलमान खान मतलब without a shirt is going to run in the aisle, ऑडियंस में भागने वाला है, तो मैं तो वहां पे फेंट ही हो जाती. मतलब आपको सलमान खान को संभालने के बजाय मुझे संभालना पड़ता वहां पे. बट वेरी वेल सेड सर. जी lot of people are enjoying this thing. हम ऐसे ही किस्से वापस से बोलेंगे, but now let's go for a rapid fire because people have been waiting for this rapid fire. तो चलिए अभी पहला वाला एक रैपिड. So guys, I'm going to play 2 rapid fires with him. तो पहला वाला रैपिड फायर मैं खेलना चाहती हूँ, जो ऐसा है कि आपके जो सॉन्ग्स हैं वो मैं आपको बोलूंगी और उस सॉन्ग्स को अगर आपको येस्टरईयर एक्टर्स के साथ रिप्लेस करना होगा तो आप किसके साथ रिप्लेस करोगे. दैट इज माय फर्स्ट रैपिड फायर फॉर यू गाइस. द सेकंड रैपिड फायर इज गोइंग टू बी व्हाट यू आर रिक्वेस्टिंग, उसको मिमिक्री एंड ऑल ऑफ दैट. बट पहला वाला मेरा ये है कि आपके वाले आइटम सॉन्ग्स और उस तरह सॉन्ग्स को अगर रिप्लेस करना है येस्टरईयर एक्टर्स के साथ तो कौन होगा. चलिए लेट्स स्टार्ट. दिस हैज टू बी फास्ट. लेट्स स्टार्ट. ओ जाने जाना. ओ जाने जाना आई थिंक शशि कपूर. ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना. शशि कपूर परफेक्ट है उसके लिए. क्या बात है. बट विदाउट शर्ट वाला कैसा लगेगा. वो नहीं कर सकेंगे. नेक्स्ट कम्बख्त इश्क में इसके लिए डेफिनेटली हो शत्रु जी. सारा जहां है वो. आई थिंक कम्बख्त शत्रु जी से बेटर कोई नहीं कर सकता. वेल डन जीजी, वेल डन. तो गाइस दिस इज जीजी दूसरा वाला टैलेंट जहां पे वो अच्छे से किसी भी एक्टर की मिमिक्री कर सकते हैं एंड ही इज एक्सट्रीमली गुड एट इट. नेक्स्ट वन खलास वुड बी रेखा जी, बिकॉज उनमें जो खलास करने वाली जो एक अदा है वो इन आंखों की मस्ती. व्हेन यू मेक अ वेस्टर्न वर्जन वुड बी खलास विद रेखा जी. वाओ, आई थिंक शी विल जस्ट प्ले विद हर आईज लाइक yes खलास. Her eyes. You don't need anything else. Perfect. Next one, it's magic.
it's magic, it's इट्स magic. मैजिक। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए बहुत एजाइल चाहिए आपको। तो शम्मी कपूर साहब, इट्स मैजिक, आई गॉट द वाइब दैट यू नीड, कच्चा नहीं कुछ भी पक्का नहीं, होता है जो कुछ भी सब खेल है। You nailed it, Gigi. ना मैंने बोला see that song ना, मैं वही सोचने वाली हूँ कि oh my god, ये ऐसा होता तो कैसा होता। Good one. Next is महबूब मेरे। महबूब मेरे में Sushmita has done a really great job because she was a diva, and anyone who can be a bigger diva is Sridevi ji, because she's got the aura. When she stands in a position, she looks like this goddess. मुझे मस्त माहौल में जीने दे, and she would have done really, really great in this song. Oh wow, oh wow. Just imagine. Right? That's a perfect cast that you're saying. Next, बाबूजी जरा धीरे चलो। बाबूजी बहुत ही नटखट और बहुत ही लचक वाला गाना है, और हेलन जी इज द, क्या बोलते हैं, अनडिस्प्यूटेबल किंग ऑफ डांसिंग, एंड आई थिंक हेलन जी से बेटर बाबूजी कोई कर नहीं सकता, बिकॉज बाबूजी को सुला देंगी वो, बिकॉज शी हैड दैट नटखटपना एंड दैट दैट लचक जो बाबूजी के लिए चाहिए। Wow, and I am just imagining the entry also. गिरी Oh my गिरी गिरी। गिरी बिजली गिरी। Good one, Gigi. Next is आज मैं ऊपर मुझे ना आसमान। आज में ऊपर बहुत चर्पी सा गाना है, बहुत ही ऐसे मतलब अटखेलियां वाला गाना है। तो बसंती जो थी हेमा जी, वो मुझे कभी भी वो जो चपड़ है ना, वो आज में आगे, वो एक्चुअली दिखता है कि हेमा जी could do a really good आज में ऊपर। So sweet, so sweet. Next is You're my चमक छल्लो। हाँ, चमक छल्लो। मैंने when I saw चोली के पीछे, there was this pelvic movement that Madhuri ji has done. She is walking sideways and the camera is moving, and I think that was the most sublime. मतलब इतना प्यारा कमर मूवमेंट मैंने देखा नहीं, और चमक छल्लो में कमर मूवमेंट ही है। अगर चमक छल्लो का स्टेप देखो तो कमर मूवमेंट है, और I think she would have done a great job in that. Wow, super. Next, Dawn. मैं हूँ Dawn. डॉन, हाँ, मेरे को लगता है डॉन वन एंड ओनली अमित जी, बिकॉज उन्होंने जब तभी डॉन किया था, तभी अरे दीवानो ऐसा था, उस टाइम पे था कि आप पार्टी में बुला के आप नाच सकते थे एज अ होस्ट। अभी बहुत ही कूल और बहुत ही स्टाइलिश होता है पार्टीज, एंड आई वुड लव टू डू मैं हूँ डॉन विद अमित जी विद दैट स्टाइल, बिकॉज आई थिंक ही किल्स इट एनी डे विद दैट ऑरा। एक ट्राई करोगे करने का अमिताभ बच्चन जी के साथ डॉन वाला, थोड़ा सा कुछ एक्सप्रेशन या समथिंग? मतलब मैं तो सिर्फ चश्मा पहनाऊं और पूरा दिन सिर्फ उनको वॉक कराऊं स्लो मोशन में, आई थिंक सो वही काफी है पूरे डॉन के लिए। स्लो मोशन में अम्बी जी चल रहे, माइंड ब्लोइंग। Very well said. So Gigi, you nailed this rapid fire. Yay! Okay, I don't have a coffee hamper right now to give, but after lockdown we will meet and I'll treat you for this one. This was rocking. Guys, don't go anywhere because I'm going to come back with another rapid fire with him, जो उनकी मिमिक्री और सिंगिंग के बारे में होगा। रीना, फॉर अ चेंज, व्हाई डोंट यू शो अस सम डांस मूव्स? ओ माय गॉड, जीजी के डांस नहीं कर सकती ना बाबा ना। तो चलिए मुड़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। सो जीजी, यू आर नोन फॉर योर म्यूजिक वीडियोस and your मैं दीवाना is like the super duper hit song, and I think it was way ahead of its time. Super music video, all girls had a crush on you, and I'm sure still all girls have crush on you. You have also choreographed other music videos like दीवाने दीवाने तो दीवाने है, श्वेता शेट्टी वाला था, जानम समझा करो, oh my favorite song, जानम समझा करो। हिंदुस्तानी, guys, हिंदुस्तानी is choreographed by Gigi. हर 26 जनवरी को, हर 15 अगस्त को हिंदुस्तानी लगता है गाना, एंड इट्स अ रॉकिंग सॉन्ग जिसमें सलमान खान, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी है, एंड बिग बी के साथ आपने किया है कभी नहीं कभी नहीं। सो टेल मी समथिंग, म्यूजिक वीडियोस देन एंड म्यूजिक वीडियोस नाउ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर टेक? आई थिंक सो जो म्यूजिक वीडियोस हमारे यहाँ पर जो होते हैं वो दे नीड टू अपग्रेड मोर, वी नीड मोर परफॉर्मर्स हु कैन परफॉर्म, बिकॉज वहां पर एक म्यूजिक इंडस्ट्री है और एक फिल्म इंडस्ट्री है, दोनों अलग है। सो यू कैन सी पीपल लाइक टेलर स्विफ्ट एंड बियॉन्से, रियाना, जस्टिन टिम्बरलेक, जस्टिन बीबर, जो खुद परफॉर्म करते हैं, खुद हीरो जैसे दिखते हैं, खुद डांस करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर सिंगर्स लोग उतने वाइब्रेंट, जो भी अगर इतना डांस करता है और इतना अच्छा दिखता है तो वो हीरो ही बन जाता है, फिर वो सिंगर क्यों रहे?
तो बेसिकली ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हमारे पैरेलल इंडस्ट्री नहीं है, एक ही इंडस्ट्री है। तो जितने भी गुड लुकिंग गाय हैं जो डांस कर सकते हैं वो आज के तारीख में सब हीरोज हैं और हीरोइंस हैं। और हमारे जो सिंगर्स हैं वो रैपर्स की तरह, जैसे जेजी है, ये है, वो है, जो पीछे रैप करते हैं, कूल दिखते हैं, बट उसमें उतना देन दे हैव टू टेक एन एक्ट्रेस और एन एक्टर टू शोकेस द वीडियो। सो ठीक है, मतलब चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लाइक्स मिल रहा है, पीपल लव द म्यूजिक, बट आई थिंक मोर एंड मोर singers should come up who can do things on their own, who can act and become like parallel to the film stars. We need singers and performers who are parallel to the film stars. वैसा एक लेवल पे हमको पहुंचना चाहिए। बट बेसिकली जो भी अभी चल रहा है, that is also rocking because the people who are featuring in the music videos, they benefit with stage shows. उनको काफी stage shows मिलते हैं, and the singers who are singing, they get a good face and a bankable face for the TRPs. So either ways, both complement each other. तो मुझे एक और चीज जाननी है, जब एमजे मुंबई में आए थे तब आपने उनके साथ काम किया था, सो आई वांट टू नो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद माइकल जैक्सन। रीना, यू वोंट बिलीव कि एज अ स्मॉल बॉय मतलब मुझे ये था कि मैं कब मिलूं एमजे से, ऐसा होगा क्या, मिल पाऊंगा क्या, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं थी। एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर देयर इज एन अनाउंसमेंट कि एमजे इज कमिंग टू इंडिया और बॉम्बे आ रहे हैं, और मुझे फोन कॉल भी आ गया कि आपको ओपनिंग एक्ट्स करने हैं। बाली सागू था और जर्मनी से नोबल सैवेजेस थे, सो उनका ओपनिंग एक्ट्स करना है, और मैं पूरी तैयारी के साथ अपना पूरा गैंग लेके, बिकॉज आई न्यू द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री इज गोना बी देयर इन द क्राउड एंड वी हैव टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। इवन एमजे हैज टू रियलाइज कि इंडिया कोई ऐसा ही नहीं है भाई, अपने पास भी कलाकार लोग हैं। सो बिफोर आई वाज गेटिंग ऑन टू द स्टेज, उनका जो मैनेजर है उसने हमारा ग्रुप का साइज देखा एंड ही सेड कि you know you can't go so many people on stage, you have to go only 8 at a time. मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वो 8 इसलिए बोल रहा था क्योंकि माइकल जैक्सन के पास सिर्फ 8 डांसर थे, तो उसने हमको बोला 8 डांसर्स। एंड आई टोल्ड कि सर नॉट पॉसिबल, हमने 1 महीना रिहर्सल किया है और हमारे बैक टू बैक गाने हैं, तो हमको इतना स्ट्रेंथ होना जरूरी है। उसने बोला आई डोंट केयर, इफ आई सी मोर देन 8 पीपल आई विल स्विच ऑफ द साउंड। मैंने बोला बैंड बजी, देन हाफ एन आवर में आई हैड टू रिकोरियोग्राफ एवरीथिंग एंड आई वाज लाइक यार आज तो धजिया उड़ने वाली है, क्योंकि लास्ट मिनट पे आप कैसे डांसर लोग को प्रोग्राम कर सकते हो 1 महीने की रिहर्सल को तोड़ने का। And then the show started and then we were managing and suddenly MJ came backstage और हमारा like I was also dancing and at some point of time I went back, so he was standing at 6 feet distance from me and I was like यार पकड़ लूं, किस कर लूं, क्या करूं, पैर पे गिर जाऊं, क्या करूं, कुछ तो करूं। बट उधर बाउंसर्स खड़े थे एंड आई न्यू कि यार जानते प्रोफेशनलिज्म नहीं है काम के बीच में सब करना। बट किसी ने मेरे ग्रुप में कैमरा लाया था जेब के अंदर, उसने एक फोटो खींचा है और वो फोटो मेरे पास है। ही इज जस्ट स्टैंडिंग 6 feet एंड दैट इज अ वेरी स्पेशल पिक्चर दैट आई हैव, दैट इज स्टैंडिंग राइट इन द बैक स्टेज। शो में हमारे साथ एक चार्ली चैपलिन भी थे, तो जब शो खत्म हुआ हम बाहर गए तो माइकल ने एक आदमी को भेजा, बोले उनको बुलाओ, जिनके वो चार्ली भी था और वो उसको, तो ही केम एंड ही आस्क्ड मी कि यू आर द कोरियोग्राफर। मैं बोला यस, तो बोले ही इज कॉल्ड यू एंड चार्ली into his room। मैं तो बोला बॉस अभी इससे ज्यादा और क्या ब्लेसिंग हो सकती है, that he wants to meet you। मतलब I cannot tell you how it was at that point of time। and then I went in, वो अंधेरा सा रूम था, he was standing, he's tall, he's huge, हमको ऐसा लगता है पतला है, but he is a proper black man and he's like really tall, हाथ वाथ बहुत बड़े उनके। और अंदर गया मैं और मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और मैंने बोला सर आई लव यू, तो उसने बोला आई लव यू टू। एंड देन मेरे को मैं उनको बोलने लगा सर ये कोरियोग्राफी मैंने की है, जैसे मुझे ब्रेक देने वाले अपने शोज में। मैं एकदम भावुक हो गया, बस रोना ही बाकी था। और वो सब बाकी मेरे डांसर्स अंदर घुस गए, कोई पैर के अंदर जा रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, चारों बाजू से। फिर वो बाउंसर आया, बोला बस इनफ ना, एंड देन ही मूव्ड अस आउट। बट दैट डे वाज द डे, दैट मेमोरेबल डे, मतलब वो अभी भी याद है मुझे कि दैट इज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ। वाओ, आई कैन इमेजिन क्या एक्सपीरियंस हुआ होगा। मतलब अभी सुन के ही मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं, तो आई कैन इमेजिन आपको वहां पे क्या हो रहा होगा। वाओ, सच मतलब एक बोला ड्रीम कम ट्रू, वैसी वाली बात हो गई थी। राइट, तो मुझे बताइए कि आपको एमजे एज अ सिंगर ज्यादा पसंद है या एज अ डांसर परफॉर्मर पसंद है? रीना, यू विल नॉट बिलीव कि एमजे बेसिकली इज अ सिंगर एंड अ म्यूजिशियन। वो डांसिंग जो करते हैं वो जस्ट अ पार्ट ऑफ हिज एक्ट। मून वॉक एमजे ने इजाद नहीं किया था, देयर वाज समवन एल्स हु हैज इंट्रोड्यूस्ड मून वॉक। एमजे का जो स्टाइल है करने का
वो स्टाइल ही उसको स्पेशल बना दिया, मून वॉक को एक फेस दे दिया एमजे ने। एंड एमजे सारा कोरियोग्राफी अगर आप देखो तो एमजे की खुद की है। वो एक्चुअली वो ऐसे रेगुलर डांसर जैसे परफॉर्म नहीं करते, ही इज गॉट स्पेसिफिक मूव्स दैट ही इज क्रिएटेड। थोड़ा जेम्स ब्राउन से लिया है, थोड़ा यहाँ से लिया है, थोड़ा वहां से लिया है, एंड ही इज डन हिज ओन पेल्विक थ्रस्ट एंड यू नो ग्रैबिंग हिज क्रॉच, एंड वो जो करते हैं उन्होंने अपना एक इजाद किया है, और वो उसका एक डांस फॉर्म उनका बन गया, वो एमजे स्टाइल उनका बन गया। बट अगर आप मुझसे पूछो एज अ सिंगर एंड अ म्यूजिशियन, ही इज 10 times more powerful as a singer and a musician than as a dancer. Of course, his dance is so vivid and so spectacular कि वो पहले सबको पहले वही चीज दिखता है, including me. I saw his Right. dance and I wanted to become a dancer. I became Right. crazy. I said कि मेरे को यही करना है, and I want to be like MJ. मैं वो gloves पहन के घूमता था, तो it's brilliant. बहुत बहुत सारे लोग, you know, अभी भी वो ट्रेंड कंटिन्यूज एंड पीपल स्टिल एमजे डांस, एमजे स्टाइल इज सो फेमस, राइट? सो टेल मी, हु इज योर फेवरेट कोरियोग्राफर? See, Reena, I believe कि जो कोरियोग्राफर अपनी मार्क छोड़ जाता है, he's got a distinct style and who gives something new every time is a good choreographer according to me. तो मुझे लगता है सरोज खान जी जो है, उन्होंने अपने आप को क्या इनोवेट किया है। From the time she's done her songs, if you see, they are so distinct and she's created stars. She's created, you know, divas, मतलब श्रीदेवी जी, माधुरी जी, ऐश्वर्या जी, जूही चावला जी. If you see all the songs that she's done, she's created, you know, जो चालबाज में जो श्रीदेवी की जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो कॉमेडी है, या माधुरी ले लो, या आप किसी का भी फेशियल एक्सप्रेशन देखो, उनके बॉडी लैंग्वेज देखो, the things that she's given, she's created, you know, basically I would like to say कि she's created this market for big songs. Because पहले भी गाने होते थे, बट जिस लेवल पे सरोज खान जी ने शुरू किया, जिस लेवल पे उन्होंने लाया है, आई थिंक दैट वाज ब्रिलियंट। उसके बाद प्रभुदेवा जी हैं, जो राइट फ्रॉम मुकाबला एंड उर्वशी, he's tried to do something different with the songs, and if you see any song like even मैं ऐसा क्यों हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रभुदेवा है, देखते ही आपको लगेगा ये कोई अलग है। So I think these two guys are my favorite because they always surprise me in a good way, and I always feel कि अरे यार ये गाना तो किसी अतरंग ने किया है, you know, that is the flavor they have. वाओ वाओ, आई थिंक that's एक कोरियोग्राफर के लिए बहुत अच्छी वो चीज होती है कि कुछ बहुत, अलग बहुत. Yes, ये क्रिएट absolutely. करना, आइडेंटिटी। वेरी वेल सेड दीदी। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड सेगमेंट ऑफ रैपिड फायर, द सेकंड रैपिड फायर, Fire. जिसके लिए लोग काफी देर से वेट कर रहे हैं, बिकॉज मुझे कांस्टेंट कमेंट्स भी आ रहे थे, लोग बोल रहे थे कि आपसे मिमिक्री करवाओ, यू नो, आस्क यू टू सिंग इन डिफरेंट वॉइसेस, सो पीपल आर वेटिंग। लेट्स गो फॉर रैपिड फायर नंबर 2। तो यहाँ पे मैं सेलिब्रिटी का नाम लूंगी, सिंगर का नाम लूंगी, एक एक्टर का नाम लूंगी, और आपको उनके आवाज में गाना है या तो उनके आवाज में आपको एक डायलॉग बोलना है, ठीक है? रेडी? लेट्स गो। फर्स्ट इज बाला सुब्रमण्यम। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई, oh my God, तू चल मैं आई, I come soon यार. Good one, good one. My favorite, Salman Khan. Great, Yes, great, your great. favorite, yes. Next, जीतू जी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पकड़ के रखूंगा, प्यार का तोहफा तेरा बनाए जीवन मेरा. That was very cute, very cute. Must have. Next, किशोर दा। कहना है आज तुमसे ये पहली बार, हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे, प्यार प्यार प्यार. Good one. You're nailing it. Next one, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा मुझे बहुत यूनिक लगते हैं बिकॉज उनका जो रेंज है एक्टिंग का, माइंड ब्लोइंग है. मुझे मेरे बहुत फेवरेट है वो. उनका ऐसा रहेगा, प्रेम नाम है मेरा, रीना जल्दी से आ जा. That was perfect, and I think you created that much. वो situation भी अच्छी create की. Good one, good one. Next, अदनन सामी। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, कैसे कैसों को दिया ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे.
Good one. Nice. Hrithik Roshan. ऋतिक रोशन मेरे बहुत फेवरेट है बिकॉज उनके दो आवाज है। तो पहला आवाज जो उनका रेगुलर रहता है, he starts with a laughter. Outstanding, Reena. It's really outstanding. Life is beautiful. ये उनका पहला है। और दूसरा जो है, मैंने ये ऋतिक को करके दिखाया कि जब भी मेरी वाइफ नाराज होती है या कुछ अपसेट हो जाती है तो मुझे उनको मनाना होता है, तो मैं ऋतिक का जो कोई मिल गया का जो रोहित कैरेक्टर है वो बन जाता और मैं उनके पास बैठ जाता, उनको हंसाने के लिए। मेरी बीवी स्मार्ट है, मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मैं मेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बीवी हंसेगी, और वो हंसने लग जाती है। दिस इज सो क्यूट। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई भी मतलब आपसे गुस्सा रह सकता अगर आप इस तरीके से मनाओगे तो। दिस इज वेरी स्वीट। यस, एंड कोई तो बोल रहा है, आई थिंक आई कैन सी लॉट ऑफ कमेंट्स, पीपल आर सेइंग कि राखी, यू डू राखी वेरी वेल। वो हमारे किरण कोटरियाल हैं जो राखी में बहुत है, बहुत फेमस है राखी की वॉइस में। बट मैं कोशिश करता हूँ, मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना फाड़ के आएंगे, आसमान की माटियां करके आएंगे। Good job, well done. This was so good. Kiran, I hope you're watching this. आपको कैसा लगा पक्का बताना। This is so good. और एक ना, एक्चुअली नॉट एक, बहुत सारे लोग ना, जब से हमारा लाइव सेशन चालू हुआ है, पीपल आर सेइंग कि आपसे एक बारी मैं दीवाना गाने के लिए मैं बोलूं। प्लीज इफ यू कैन डू दैट। दिलरुबा माना है कातिल तेरी अदा, लाखों है आशिक तुझ पे फिदा, हमको भी तू आजमाना, मैं दीवाना हूँ, मैं दीवाना, ऐसे जाने ना दूंगा जाना, यूं ना हमसे नजरें चुराना, होगा हमसे ही दिल लगाना, दिलरुबा। गुड जॉब, बहुत बहुत अमेजिंग। सी कमेंट्स, लोग बोले जा रहे हैं, दे आर लविंग दिस, दे आर लविंग दिस, यू आर नेलिंग इट। चलिए आप मुड़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ, लास्ट जस्ट साइनिंग ऑफ थिंग, बिकॉज इंस्टाग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है एंड वी हैव टू साइन ऑफ। तो मुझे एक चीज समझी है कि आपने अभी अनाउंस किया है दैट यू आर गोइंग टू डायरेक्ट अ फिल्म, आप डायरेक्टर बन रहे हो। दैट इज सो गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आपने आपकी कास्ट और आपका क्रू तो आपने सोच ही लिया होगा कि आपकी क्या कास्ट होगी, क्या क्रू होगा, बट इज देयर एनी वन पर्टिकुलर एक्टर, वन पर्टिकुलर स्टार जिसके लिए आप क्रेव कर रहे हो कि आपको उनके साथ काम करना है? रीना, ऐसा कोई नहीं है इस फिल्म इंडस्ट्री में जो इनके साथ नहीं काम करना चाहेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली मिस्टर अमिताभ बच्चन। बिकॉज जिस दिन इनके साथ आपने काम कर लिया उस दिन आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो गई, बिकॉज ही इज वन मैन इंडस्ट्री फॉर अस। एंड आई होप कि ये एक आध दो फिल्म करके मैं इतना ग्रेजुएट हो जाऊं कि ही सेज यस टू मी, एंड होपफुली आई हैव द ब्लेसिंग्स टू डायरेक्ट अ फिल्म फॉर मिस्टर अमिताभ बच्चन। Wow, I just wish and pray that ये हो जाए जल्द से जल्द, and we would love to see your name as a director on the big screen and you directing Mr. Amitabh Bachchan. I really hope. I would like to say one thing, Reena. I think you've been doing so well. I've seen your dancing, I've seen your acting, I've seen your hosting now, and you're really talented. And I think it's time. It's time that you deserve your due, and people start casting you in their films, because I think you're going to rock and you're going to do really well as an actress. So please, directors लोग जो ये सुन रहे हैं, जो producers लोग जो ये देख रहे हैं, प्लीज जल्दी से रीना को कास्ट कीजिए, बिकॉज शी हैज गॉट समथिंग। हमारी नई रॉक स्टार बनने वाली है। थैंक यू सो मच। ये बेसिकली आप लोगों का ही सपोर्ट है। मैं होस्ट पहले कभी किया नहीं था, ये लॉकडाउन के टाइम पे सबका अपना अपना एक हिडन टैलेंट निकल रहा है। मैंने भी सोचा कि चलो कुछ किया जाए, बट यू, किरण कोटरियाल, एवरीबडी फ्रॉम आवर ग्रुप, सब लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया है, एंड दैट्स द रीजन मैं ये हिम्मत कर करके सीख रही हूँ। But thank you for all your blessings and all your support. And I wouldn't have been able to do anything without you guys. And today your finale has rocked. And Yes. we are waiting for your new series to start soon. Thank you so much. I'm also waiting because I won't be able to stay away from Instagram live. तो मैं भी बहुत जल्दी कुछ नया लेके आऊंगी ऑडियंस के सामने. So thank you so much, Gigi, for joining me on today's episode of The Reel Makers. And
ट्रूली ये बहुत अच्छा मेरा एक फाइनल एपिसोड हुआ है एंड आई एम श्योर मुझे जितना मजा आया आई होप आपको भी उतना Yes, मजा आया. everyone loved it. I loved it too. Thank you so much for joining me and all the best for all your future projects. And I'm hoping and praying to see you very soon on a big screen and directing Amitabh Bachchan. Love you, Reena. Take care. Thank you so much. Bye. Tata. Bye bye.